अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीजेएस के सदर और एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि बीआरएस लीडर इख्तिदार में रहे बगैर नहीं रह सकते और अगर कोई हुकूमत नहीं करेगा तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कोई भी हुकूमत स्कीमें देगी लेकिन जमहूरी तर्ज हुक्मरानी जरूरी है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि पैसे से सियासत करने का रिवाज खत्म हो जाए। हुजूराबाद जिले साधना समिति के ज़र एहतमाम जमहूरी हुक्मरानी कारकुनान का किरदार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। कॉन्फ्रेंस में बहसियत मेहमान खसूसी शिरकत करने वाले कोदंडाराम ने कहा कि साबिका हुकूमत के दौरे हुकूमत में इलाकों के वजूद को नजरअंदाज करते हुए अजला की तकसीम की गई थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अजला की तकसीम के लिए एक कमीशन कायम करने का फैसला किया। 8 ఏళ్లుగా పోరాటం జరుగుతూ ఉంది। పివి నరసింహారావు గారు ఒక జాతీయ స్థాయి గొప్ప నాయకుడు, భూ సంస్కరణలకు మూల పురుషుడు। భారతదేశం అంతా కూడా భూ సంస్కరణలు అమలైనాయంటే అది పివి నరసింహారావు గారి కృషి। ఒక ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నేర్చుకోవటం, దాన్ని వ్యవసాయ రంగంలో ప్రవేశపెట్టి వ్యవసాయాన్ని ఆధునీకరించే ప్రయత్నం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా పివి నరసింహారావు గారి హయాంలో జరిగినాయి। వారి పేరు మీద జిల్లా ఏర్పడితే దేశానికి దేశ స్థాయిలోనే గుర్తింపు వస్తుందని ఒకవైపు, రెండో వైపు పివి నరసింహారావును ఆదరించినట్టు అవుతుందనేటువంటి భావన। ఈ కారణం చేత ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు కూడా హామీ ఇచ్చారు। ఇప్పుడేమో మరి ప్రభుత్వము ఒక కమిషన్ను వేసి మొత్తం ఈ జిల్లాల కూర్పును పరిశీలించాలనే ఆలోచనతో ఉన్నట్టు వారు ముఖ్యమంత్రి గారే ప్రకటించారు। కాబట్టి ఆ సందర్భంగా ఈ పివి జిల్లా ఏర్పాటు గురించి కూడా చర్చ చేయాలి, దానిపైన కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం। ఇంకొక మాట మేము ప్రధానంగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీగా బీఆర్ఎస్ నాయకుల అసహనం మాత్రము అది ఏ రకంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం। ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 నెలలు కూడా పూర్తి కాలేదు, అప్పుడే ఒక అసహనం ఇది ఉండదు అని శాపనార్థాలు, కూల్చదని శాపనార్థాలతో పాటు మొత్తానికి ఇది ఎట్లా నిలబడుతుందో చూస్తామనేటువంటి కోపం, మేము పైసలతో ఏవైనా చేయగలవనేటువంటి అహంభావము ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ప్రదర్శిస్తున్నది। వారు మొత్తంగా కూడా ఒక అప్రజాస్వామిక ధోరణిలోనే వ్యవహరిస్తున్నారు। ఇట్లాంటి ధోరణి పనికిరాదని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తూ, ఒక రాజకీయ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమే ప్రజాస్వామ్యం కోసం, అస్తిత్వం కోసం, ఆత్మగౌరవం కోసం జరిగిన పోరాటం। ఆ ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తిని కాపాడుకోలేకపోతే రాష్ట్ర పురోగతి సాధ్యం కాదు। ఆ ప్రయత్నం ప్రతిపక్ష పార్టీగా బీఆర్ఎస్ కూడా ఆ ప్రయత్నం అదే లక్ష్యంతో పనిచేయవలసిన బాధ్యత ఉంది। కానీ ఆ బాధ్యతను మరిచి మేము ఎన్నికల ప్రక్రియ, ప్రజాస్వామికంగా ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి అధికారం, ప్రజలకున్న అధికారాన్ని కూడా తూట్లు పొడుస్తూ మా ఇష్టానుసారంగా మార్పులు తేగలమని ప్రతిరోజు ప్రకటించటం అది విడ్డూరంగా ఉంది, అది చాలా అప్రజాస్వామిక అహంభావపూరితంగా ఉంది। ఇట్లాంటి ధోరణులను ప్రజలు కూడా बीआरएस पार्टी एमएलसी कलवाकुंटला कविता ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस पार्टी लीडर केसीआर ने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए जो तहरीकें चलाई हैं वो सबके लिए मुतासर कुन है और ओबीसी हुकूक की तहरीक को केसीआर की तहरीक से चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केसीआर कानून के जरिए की गई हर हरकत का नतीजा मिलेगा। उन्होंने केसीआर को मिसाल के तौर पर लेते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी के हुकूक के लिए जदोजहद शुरू करने पर खुशी का इजहार किया और ये ख्याल किया जाता है कि मुतनासिब रिजर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि बीसी जात की मर्दमशुमारी की जाए और मुकन्ना में ख्वातीन के रिजर्वेशन में ओबीसी ख्वातीन के लिए कोटा फराहम किया जाए। हमारी जानकारी बाई की भी बात आती है, हमारी अवंती बाई की भी बात आती है और हमारे हाजिया भाई होलकर के बारे में बात होती है। उन सबसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चाहे वो शोषितों की बात हो, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमारी बड़ी दीदी उमा भारती जी जो है, यहाँ से उभर के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक महिला नेता का उभरना कितना मुश्किल है आप सब जानते हो, लेकिन यहाँ से उभर के यहाँ के प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी थी और नेशनल लेवल पे इतना अच्छा लीडर वो बन गए और महिलाओं के प्रति वो आवाज हमेशा उठाते रहे। वो भी हमारे बहुत स्फूर्तिदायक एक नेता है, महिला नेता है और वो उनके प्रदेश में आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और आप सभी भाइयों से मेरा इतना ही विनती है, हम तो संघर्ष करके हमारे प्रदेश अलग इस हिंदुस्तान में बनाने वाले लोग हैं, संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ, जो भी संघर्ष करेगा जरूर सत्ता में आएगा। आज दामोदर जी ने एक संघर्ष शुरुआत किया है और इस संघर्ष उनकी अकेले की नहीं, जो आवाज मध्य प्रदेश में आज उठ रही है, आपको लग सकता है कि आप छोटे सी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन नदी भी बहुत छोटे तरीके से शुरुआत होती है, लेकिन जब विश्व रूप दिखाती है ना, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आज एक शुरुआत हुआ है, लेकिन ये आज इस सभा से, इस मंच से हमने जो कहा है, इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान भर में भी पहुंचेगा और बहुत एक बड़ा ताकत बन के रहेगा। आज आवाज उठाने की जरूरत इसीलिए है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमें मांगना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है ना, जितने लोग हैं उतना मत है, उतना रिजर्वेशन दे दो, सिंपल गणित है, इसमें कोई रॉकेट। एक इत्तला पर एसओटी महेश्वरम जोन की टीम ने बालापुर पीएस के हुदूद में मदीना बाजार बिल्डिंग एराकुंटा में झील के नाम एक हुक्का पार्लर पर सेंटर छापा मारा है और 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1260 रुपए नकदी, 7 मोबाइल फोन, 20 हुक्का पॉट्स, 24 हुक्का पाइप्स, 30 कोल बॉक्स, फ्लेवर बॉक्सेस और चिल्लम एल्युमिनियम पेपर बंडल्स भी बरामद किए। बीआरएस स्टूडेंट विंग के सदर गेलू श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना भवन में प्रेस मीट मुनक्किद की और कहा कि हम मधु या शकी के कहे गए अल्फाज की मजम्मत करते हैं कि वो केसीआर के फार्म हाउस पर हमला करेंगे। कांग्रेस हुकूमत वादों पर अमल नहीं करती। उन्होंने कहा कि आए दिन हम पर इल्जामात लगाए जाते हैं, अगर केसीआर फार्म हाउस को छूते हैं, आइए सिर्फ देखते हैं, अगले इलेक्शन में लोग लाठियां जलाकर आप पर लानत भेजेंगे। अगर आप केसीआर के फार्म हाउस को छूते हैं तो हम इसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और कहा कि इससे पहले सीएम ने यह भी कहा था कि उनका ख्याल है कि बंडे से राब्ते हैं। श्रीकाकुलम हल्के तेलुगुदेशम पार्टी के इंचार्ज साबिक एमएलए गंडा लक्ष्मी देवी ने श्रीकाकुलम रूरल मंडल में टीडीपी इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। रागुलू के करीब एसिरतपल्ली और कल्याणा मंडपम में देही मंडल क्लस्टर यूनिट बूथ लेवल एजेंट्स और खवातीन को पीर की सुबह 10 बजे से TDEPA रैंक के लिए तरबियत दी गई। इस प्रोग्राम में साबिक एमएलए गंडा लक्ष्मी देवी ने कहा है कि टीडीपी के कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू को मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतल्लिक मसाइल को घर घर ले जाना चाहिए और पार्टी की कामयाबी के लिए सबको काम करना चाहिए। रियासती रेवेन्यू मिनिस्टर वेरुलू धर्मना प्रसाद राव और नौजवान लीडर धर्मना राव मनोहर नायडू ने सुबह 10 बजे देही मंडल के तांडिया मुआलासा गांव श्रीकाकुलम में मुनक्किदा वाईएसआर आसरा पेंशन तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज हम इस इमदाद की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 5 सेक्रेटरीट के दायरेकार में तांडिया मुआलासा और सलगाम सेंगुवालासा गुडम रागुलू गांव के दुआकरा गांव की खवातीन को 4,36,30,000 रुपए के कर्ज माफी दे रहे और 5,67,46,46,000 रुपए माफ किए जा रहे। आसरा तकसीम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जो मंडल 9 पंचायतों और साली हैंडम बोरविली बंडारवानी पेट के मुतियालेसम कलिंगापट्टनम वर्मा वैली और टोंगी गांव में कायम किए गए। महबूब नगर जिले में ज़र इल्तवा प्रोजेक्टों पर एमएलए से मुलाकात की गई। बुनियादी तौर पर नारायणपुर कोड़ंगल लिफ्ट स्कीम, कोयल सागर पालामूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। महबूब नगर जिले के एमएलए यन्नम श्रीनिवास रेड्डी, मक्तल श्री हरी जी, माधव सुदन रेड्डी और पर्णिका रेड्डी, AICC सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी व दीगर ने सेक्रेटरीट में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ मीटिंग में शिरकत की। महानामा तेलंगाना की डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी के हाथों अमल में आई। वुजरा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, दानसारी अनुसोया असीतक्का, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, महकमे इत्तलात के स्पेशल कमिश्नर अशोक रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के CPRO अयोध्या रेड्डी ने, महानामा के एडिटर शास्त्री और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। सुनील डिम्पल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में LG मनोज सिन्हा DG पुलिस स्वयं को आगाह किया है और कहा है कि मुझे और मेरे खानदान को धमकियां मिल रही हैं। मुझे इंतबा मौसूल हुआ है कि मेरी जिंदगी को
खतरा है। मुझे अपने व्हाट्सएप पर अबू उमर लश्करी दहशतगर्द तंजीम के पाकिस्तान से एक गुमनाम मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी मौसूल हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी सरजमीन का बेटा हूं। ये मामला एलजी ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस मनदीप भंडारी, डिवीजन कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार के नोटिस में लाया गया है और पुलिस को मजीद कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे और मेरे खानदान को अलग सिक्योरिटी की जरूरत है। Both are you in our hit list and watch, everything is ready. ये मैसेज पाकिस्तान के आया है और आप ये देख सकते हैं ये पाकिस्तान से आया हुआ मैसेज है। और फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मैसेज जब इसको खोला मैंने और ये देखा, ये अबू उमर लश्करी, हो सकता है लश्कर तोयबा का कोई हिस्सा हो, विंग हो, और इसका जो नंबर है 994403296419। तो इससे मैंने क्योंकि 35 साल से हम ये जंग लड़ रहे हैं आपसी भाईचारे को कायम रखने की, और इस सिलसिले में मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करूंगा, इसकी इत्तला राजभवन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप भंडारी जी के माध्यम से और अपने जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी के माध्यम से और जम्मू कश्मीर के हमारे अपने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर विनोद जी के माध्यम से सरकार तक हमने ये पैगाम भेज दिया है। और सरकार ने कदम उठा रही है, हमें भरोसा है अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर, अपने सुरक्षा बलों के ऊपर। लेकिन एक पैगाम मैं इन लोगों को भेज देना चाहता हूं, इन टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वालों को, जिन्होंने ये धमकी वरा, जब मैंने ट्रू कॉलर में देखा ये नंबर तो ये पाकिस्तान का निकला। तो मैं इन्हें ये बता दूं कि मैं अपने मिशन में रुकने। एपीसीसी चीफ वाइस शर्मिला रेड्डी ने अदुपोला पाया स्टेट के वाईएसआर घाट पर खराज अकीदत पेश किया। वाईएस सुनीता रेड्डी ने शर्मिला रेड्डी के साथ घाट पर खराज अकीदत पेश किया। शर्मिला रेड्डी कड़पा जिले कांग्रेस के वसी पैमाने पर इजलास के लिए अदुपोला पाया से रवाना हुई। खानसास बोला ब्रह्मनायडू ने मतलब किया है कि हम संक्रांति के त्योहार की नेक ख्वाहिशात के साथ मनकुंडा हल्के की लड़कियों को एक छोटा सा तोहफा दे रहे। खानसास बोला ब्रह्मनायडू ने कहा है कि जनानी फाउंडेशन का बुनियादी मकसद हल्के की हर बहन को त्योहार का तोहफा फराहम करना है। नौजंडला मंडल की कई देहातों में साड़ी तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया गया। इस मौके पर खानसास बोला ब्रह्मनायडू ने कहा है कि वो संक्रांति के त्योहार के दौरान वनुकुंडा हल्के में हर अडपाड़ू चौक को तोहफे के तौर पर साड़ी तकसीम करते हुए बहुत खुश हैं, जो साल का पहला बड़ा त्योहार है। उन्होंने कहा है कि ये त्योहार इंतहाई रवायती अंदाज में मनाया जाता है। కొంతమంది సహకరించగా ఇలా చెప్తున్నారు చూడండి, కొంతమంది సన్యాసులు మాట్లాడతారు. ఆ సన్యాసులు మాట్లాడే మాటలు వాళ్ళకి కనీసం అక్కడి సన్యాసులను బట్టి ఈ ఊర్లో ఇలా ఇప్పుడు దాకా ఈ గ్రామానికి అగ్రహార భూమి నుంచి తీసేసుకోలేకపోయాం. ఆ సన్యాసులు ఏం చేశారు? మాట్లాడేటప్పుడు స్థాయిని మించిన మాటలు మాట్లాడతారు కొంతమంది. సన్నాసి అనే దాంట్లో నేను ఒకటి చెప్తున్నాను, పూర్తి స్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏనాడైనా ఈ భూమి రీసర్వే చేయాలని కానీ ఎక్కడికి 10 సంవత్సరాలు చేసిన ఎమ్మెల్యే ఆ ఆలోచన కానీ చేశావా అని అడుగుతున్నాను.
ఆలోచించని చేతగానే దద్దమ్మలాగా మాట్లాడండి. మీరు దద్దమ్మలుగానే ఉండండి, అంతేగాని ఇక్కడ పిచ్చి మాటలు పిచ్చి వ్యవహారం చేస్తే మీరు తప్పులు చేసిన మీరు భయపడండి. ఇక్కడ ఉన్న వాస్తవాలు చెప్తే ఈ గ్రామంలో అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి జరగాల్సి ఉంటే ఆ అభివృద్ధిని, ఈ గ్రామ రీసర్వేని, ఈ గ్రామ అగ్రహార భూముల్ని అన్ని విధాలా పూర్తి చేసే సమయం. तिरुपति जिले कांग्रेस पार्टी की वसी सतह मीटिंग हुई। एपीसीसी सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रही। कांग्रेस पार्टी के कायदीन जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की उनमें पुल्लम राजू, रघुवीरा रेड्डी, कोपला राजू, गुडुगु, रुद्र राजू और दीगर शामिल थे। वाइस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने इस दौरान खिताब भी किया। पालनाडु जिले तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और साबिक कानून साज जयवी अंजनुलु और वनुकुंडा हल्के के कोऑर्डिनेटर कोनजेती नागसरेनु और तेलुगुदेशम पार्टी और जनसेना पार्टी के कायदीन, कारकुनान और अकीदतमंद जिन्होंने नौजंडला मंडल वेनुकोंडा हल्के के श्री रामा योग्य तिरुनाला में स्वामी से मुलाकात की। आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत को गवर्नर कोटे के तहत तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसिल नामजद किए जाने पर भैंसा सियासत रिपोर्टर अजहर अहमद खान ने सियासत दफ्तर हैदराबाद पहुंचकर आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत वो एमएलसी को मुबारकबाद पेश की और शॉलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए सियासी सफर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर भैंसा के अकील खान भी मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली बहादुरपुरा के रामनस्तपुरा डिवीजन में 4.51 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर एमआईएम बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन, एमआईएम कॉर्पोरेटर और दीगर मजलिसी कारकुन भी उनके साथ मौजूद थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।